مینرز کاسٹ نتھنگ بٹ مین ایوری تھنگ، یعنی اچھی عادتیں، اچھا رویہ اور اچھے آداب ظاہری خوبصورتی سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے دیٹ گڈ مینرز میک چلڈرن مور اٹریکٹیو دین دیئر فزیکل بیوٹی۔ بے شک بچے جتنے مرضی گڈ لکنگ اور پریٹی ہوں، جب تک وہ ویل مینرڈ نہیں ہوتے، کسی کو بھی ان بچوں کے اندر کوئی خاص اٹریکشن نظر نہیں آتی۔ ہر کوئی ان سے دور رہنے اور ان کو اوائڈ کرنے کی ہی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بچے کو امپورٹنس دیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کریں، اسے سنیں، تو آپ نے اپنے بچے کو ویل مینرڈ اور ویل بیہیوڈ بنانا ہے۔ آج کے ولاگ میں کچھ بہت امپورٹنٹ پرائم اینڈ فور موسٹ مینرز شیئر کر رہی ہوں جو آپ نے اپنے بچے کو ہر حال میں سکھانے ہیں، چاہے بچہ کسی بھی ایج میں ہے، چھوٹا ہے یا ٹین ایجر ہے۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس کو ضرور ایکنالج کیجیے گا ٹو نرچر اینڈ گروم یور چائلڈز پرسنالٹی۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین، ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو الحمدللہ۔ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے اگین ارلی مارننگ سے۔ میں بچیوں کے لیے اور اپنے لیے بریک فاسٹ ریڈی کر رہی ہوں۔ میں پوٹیٹو کے سمپل سینڈوچز بنا رہی ہوں اور یہ میں نے شارٹس پہ اپلوڈ کیا تھا، تو کسی کا میسج آیا تھا کہ آپ اس کی فل ریسیپی دیں۔ آپ شارٹس پہ جا کر چیک بھی کر سکتے ہیں۔ سو اس کی ریسیپی بہت ہی سمپل ہے۔ 2 پوٹیٹو بوائل کر کے میں نے انہیں میش کر لیا تھا اور ایز پر ٹیسٹ میں نے اس میں نمک، مرچیں اور کچھ مسالے ایڈ کیے تھے، لائک چاٹ مسالہ اور زیرہ، اور اس کے علاوہ نا میں نے 2 انڈے بھی فرائی کر لیے تھے، کیونکہ آف کورس ایگز کے ساتھ ایک ہیلدی بریک فاسٹ بچوں کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے۔ سو ان دونوں چیزوں کو میں نے سینڈوچ میں سمپلی اسٹف کر کے اور سیلڈ اوپر رکھ دیا تھا۔ سیلڈ بچیاں نہیں کھاتی، میں نے جسٹ اپنے سینڈوچ میں ہی ایڈ کیا تھا۔ سو یہاں الحمدللہ بریک فاسٹ ریڈی ہو گیا ہے۔ دوپہر کے لیے میں نے مونگ اور مسور کی دال بنانی ہے۔ ساتھ ساتھ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کوکنگ کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے کچھ کامنٹس آئے تھے جس میں آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ ہی بچیوں کی یا بچوں کی توجہ موبائل سے کس طرح ڈائیورٹ کریں، ان کی موبائل کی عادت کیسے چھڑائیں، تو اس کو بھی میں آج ڈسکس کروں گی۔ اور ساتھ ہی یہ پوچھا گیا تھا کہ گھر پہ جو کچھ بڑے بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو، اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں، تو ایسی سچویشن کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے۔ سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ وہ کون سے بہت امپورٹنٹ مینرز اور ایٹیکیٹس ہیں جو آپ نے اپنی ہر ایج کے بچے کو ضرور سکھانے ہیں۔ نمبر 1 از ٹیچ them to say please۔ اکارڈنگ ٹو دس مینر بچوں کو نرمی سکھائیں، پلیز کہنا سکھائیں۔ جب بچہ پلیز کہنا شروع کر دے گا نا تو اس کے مزاج میں نرمی یا پولائٹنس آئے گی۔ لہجے میں نرمی اور خوش اخلاقی لے کر آنے سے بہت سارے مسئلے ایونچولی سالو ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا verbal wounds are hard to heal، یعنی الفاظ زخمی نہیں کرتے، رویے کرتے ہیں۔ اگر آپ سخت سے سخت الفاظ بھی نرم لہجے اور پولائٹ وے میں کریں گے، آپ کا انداز اچھا ہوگا تو سامنے والے کو وہ لہجہ فیل ہی نہیں ہوگا اور آپ کے سخت الفاظ پر کوئی خاص توجہ ہی نہیں جائے گی یا اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ معمولی سی بات بھی کرخت لہجے میں یا جھڑک کر بچے سے کریں یا کسی کو بھی کریں گے تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ بدتمیزی کی گئی ہے۔ اس لیے نرمی کی اتنی امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں، تو اپنے بچوں کو پلیز کہنا سکھائیں تاکہ ان کے اندر نرمی اور پولائٹنس پیدا ہو۔ اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث بھی ہے کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ کل خیر سے محروم ہوا۔ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہمیں بچہ آ کر یہ کہتا ہے کہ مما پلیز میں یہ کھا لوں یا مما پلیز میں وہ ٹوائے سے کھیل لوں، تو ہمیں ایک دم نرمی کا جذبہ ہمارے اندر بھی آ جاتا ہے اور ہم اسے فوراً پرمیشن دے دیتے ہیں۔ تو اس پلیز کہنے میں اتنی اٹریکشن ہے، جب بچہ 1 سے 2 سے 3 دفعہ پلیز کہتا ہے تو ہم فوراً اس کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ اس کا جو انداز ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ ریکویسٹنگ ہوتا ہے۔ سو سیئنگ پلیز encourages politeness and gratitude in your children. Moving to the second point, which is teach them to say thank you. دوسرا ادب جو آپ نے بچوں کو سکھانا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں تھینک یو کہنا سکھائیں۔ جب بھی ہم کسی سے بات کرنے کے دوران تھینک یو کہتے ہیں تو سامنے والے کے ساتھ ہماری بانڈنگ انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ جب انسان کسی کا بھی شکر ادا کرتا ہے نا تو وہ واقعی اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا بچہ آپ کی کوئی بھی منگوائی ہوئی چیز لے کر آتا ہے، لائک اگر آپ نے اسے پانی منگوایا ہے اور وہ لے کر آیا ہے، یا کوئی اور کام جو آپ نے اسے کہا ہے اور اس نے وہ پورا کر دیا ہے، تو اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اسے جواب میں تھینک یو کہیں۔ جب آپ اسے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے ایکٹس پر تھینک یو کہیں گے تو الٹیمیٹ اس کی بھی یہ عادت ڈیولپ ہوگی اور وہ آپ کو اور باقی لوگوں کو تھینک یو کہنا سیکھے گا، کیونکہ والدین کا ہر عمل بچوں کے لیے تعلیم و تربیت بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے پہلے اپنے اعمال اچھے کریں۔ صرف بچوں سے ہی امیدیں نہ رکھیں کہ وہ اچھے بن جائیں اور آپ سکون سے بیٹھے رہیں، پہلے اپنے عمل سے بچوں کو اچھا بن کے دکھائیں۔ آپ ان کو رول ماڈل بن کے دکھائیں، آپ جو کریں گے بچہ وہی کرے گا۔ As I have told you before کہ بچے وہ نہیں کرتے جو والدین ان کو کرنے کا کہتے ہیں، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو والدین خود کرتے ہیں۔ تو اس لیے سمپل از دیٹ کہ جب آپ تھینک یو کہیں گے تو الٹیمیٹ بچوں کے اندر بھی یہ ہیبٹس ضرور ڈیولپ ہوں گی، کیونکہ گھر کا ایک ماحول بن جاتا ہے نا، وہی بچے شروع سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے اسی ماحول کے حساب سے خود کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔
पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टीच चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंस नॉट डिपेंडेंसी, यानी बच्चों को दूसरों से चीजें मांग कर इस्तेमाल करना नहीं सिखाएं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको दूसरों से चीजें मांग कर इस्तेमाल करना बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अपनी चीज देते हुए उनको तकलीफ होती है। सो छोटी छोटी चीजें मांग कर इस्तेमाल करने की आदत बच्चों के अंदर स्टार्ट से ही डेवलप ना होने दें, क्योंकि इस तरह करने से ना शुरू से इनकी आदत पुख्ता होती जाती है और ये बड़े होने तक रहती है। इसका फायदा ये होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आता है, वो खुशी भी फील करता है और देने वाला हाथ हमेशा खुश रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टीच योर चिल्ड्रन टू प्रेज अदर्स। बच्चों को तारीफ करना सिखाएं। जब आप अपने बच्चे की छोटी छोटी बातों पर तारीफ करेंगे तो बच्चे भी अपने से छोटे बहन भाइयों या अपने फ्रेंड्स या अपने कजन्स की तारीफें करेंगे, और इसके साथ साथ पेरेंट्स की भी तारीफ करेंगे। लाइक अगर मम्मा ने अच्छा खाना बनाया है तो बच्चों को आदत होगी, वो कहेंगे वाह मम्मा आज आपने बहुत मजे का खाना बनाया है। और बाबा अगर बाहर कहीं घुमाने लेकर जा रहे हैं या कोई गिफ्ट कोई चीज घर पर लेकर आए हैं, तब भी वो उनके शुक्रगुजार होंगे और कहेंगे थैंक यू बाबा, आपने हमें ये इतनी अच्छी चीज ला कर दी है। इसका फायदा ये होता है कि ये तारीफें बाहर भी जाती हैं, सिर्फ घर तक ही नहीं रहती, और दूसरों की अच्छी चीजों की भी बच्चे तारीफें करते हैं। और अगर बच्चे को तारीफ करना आ गई, दूसरों की चीजों को देखकर खुश होना आ गया, तो इनके अंदर दूसरे बच्चों से जेलसी का एलिमेंट भी नहीं आएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में जेलसी ना आए, वो दूसरों की चीजें देखकर जेलस ना हो, तो उसको तारीफ करना सिखाएं। जब वो दूसरों की तारीफ करना सीख जाएगा तो कभी भी दूसरों से जेलस नहीं होगा। आप देखें कि सिर्फ एक तारीफ सिखाने से बच्चे के अंदर से जेलसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टीच देम टू शेयर देयर थिंग्स। बच्चों को अपनी चीजें दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना सिखाएं। अक्सर वालिदैन परेशान होते हैं कि बच्चे चीजें शेयर नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है कि वालिदैन को खुद शेयरिंग की आदत नहीं होती। अब वो खुद ही शेयरिंग नहीं करते तो बच्चे भी वो नहीं सीखते। अक्सर पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बच्चों से खुद कहते हैं कि फलाने की चीज यूज कर लो और अपनी बचा के रखो। नेवर टीच चिल्ड्रन टू बेग फ्रॉम अदर्स। अच्छा, इस चीज में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। मैं अपनी बच्चियों को कभी ये नहीं कहती कि किसी की चीज यूज करो, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर शुरू से आदत ही डेवलप नहीं है कि किसी का पेंसिल, रेजर या कोई भी और चीज यूज करें। हाँ, कोई अपनी मर्जी से कोई चीज देता है तो वो एक अलग चीज होती है, और माशाल्लाह इनको शेयरिंग की भी स्टार्ट से ही आदत है। अगर आपके बच्चे को ये आदत नहीं है तो उसके हाथ से दूसरे बच्चों को चीजें दिलवाएं ताकि उसके अंदर ये हैबिट डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट इज टीच देम टू से सॉरी। काफी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को माफी मांगना नहीं सिखाते, और इसकी वजह से बच्चे खुद बहुत तकलीफ में रहते हैं। और ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने छोटे या बड़े बच्चे की कोई गलती तस्लीम ही नहीं करते, बस दूसरों को ही झूठा साबित कर देते हैं और अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। पेरेंट्स ये आदत बच्चे में लाड लाड में पहले खुद डेवलप करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये आदत उनकी पुख्ता हो जाती है, तो खुद ही इस आदत से वो परेशान रहते हैं और सर पकड़ के बैठ जाते हैं। माफ कर देना या माफी मांग लेना एक ऐसा अमल है जिससे सामने वाला भी सेटिस्फाई रहता है और अगला बंदा खुद भी काम और रिलैक्स हो जाता है। तो बच्चों को उनकी गलती तस्लीम करना सिखाएं, बल्कि खुद भी उनकी अगर कोई वाकई गलती है तो उसे तस्लीम करें, ताकि बच्चे के अंदर भी ये हैबिट डेवलप हो कि उससे भी कोई गलती हो सकती है। अगर आपने अपने बच्चों और बच्चियों को सॉरी कहना सिखा दिया है तो आगे जिंदगी में उनको इसका बहुत फायदा होगा। आगे जो उनके नए रिलेशंस शादी के बाद बनेंगे या वर्क प्लेस पर, उनके लिए चीजों को हैंडल करना बहुत इजी रहेगा। इसी तरह अगर आपसे भी कोई गलती हो जाती है, आप बच्चे को डांट देते हैं, झिड़क देते हैं या मारते हैं, तो आप भी बच्चों से सॉरी कहें और बच्चों को भी सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज टीच देम टू लिसन अदर्स, यानी बच्चों को सुनना सिखाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलते ही चले जाते हैं और उन्हें दूसरों को सुनना पसंद ही नहीं होता, क्योंकि उनके वालिदैन भी दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते। जब बच्चे अपने वालिदैन को कोई बात बताना चाह रहे होते हैं, कुछ कहना चाह रहे होते हैं या कुछ दिखाना चाहते हैं, तो उनके वालिदैन उनको बोलने का मौका ही नहीं देते। मोबाइल में लगे होते हैं या बिजी होते हैं, अपने किसी काम में एंगेज होते हैं, इसलिए बच्चे की बात को इग्नोर करते रहते हैं, उसे सुनते नहीं हैं। सो बच्चा भी यही सीखता है। तो जब बच्चे को बोलने का मौका मिलता है वो भी किसी की नहीं सुनता। इसलिए जो भी अदब बच्चे को सिखाना हो, इस पर पहले खुद पेरेंट्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, यानी आप सुनेंगे तो वो भी सुनेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टीच देम टेबल मैनर्स। बच्चों को खाने के आदाब सिखाएं। अक्सर बच्चे जब खाना खाते हैं ना, तो बाकी लोग उनको खाना खाते देखकर इरिटेट होते हैं, उलझन का शिकार होते हैं। अगर टेबल मैनर्स या डाइनिंग मैनर्स आप बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? ये छोटी उम्र से ही बच्चों को सिखाया जाता है। खाना खाने से पहले हाथ धोना, खाना अगर खा रहे हैं निवाला मुंह में है तो आवाज का ना आना, खाना सीधे हाथ से खाना, पानी भी सीधे हाथ से पिएं, और अगर नीचे बैठकर खा रहे हैं तो शीट बिछाएं प्रॉपर। खाना खाने से पहले जरूर डाइनिंग मैट या फूड मैट बिछाकर खाना खाएं, चाहे एक बच्चा ही क्यों ना खाना खा रहा हो।
प्रॉपर मैनर्स के साथ खाना खाते हुए बच्चे सबको तहजीब याफ्ता और अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टीच देम टू स्टे क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि हाइजीन का ख्याल कैसे रखा जाता है। सफाई निस्फ ईमान है, इस चीज़ का भी प्रचार करें। बच्चे जब स्पेशली बाहर से खेल कर आते हैं तो उनके हाथ पांव धुलवाएं और ये घर पे एक रूल बना लें कि जब भी आपने बाहर से आना है आपने ज़रूर हाथ, मुंह और अपने पाँव धोने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टीच देम टू हैव सम पेशेंस, यानी बच्चों को सब्र करना सिखाएं। अक्सर वालिदैन कहते हैं कि मेरे बच्चों के मुंह से बात निकलती नहीं है और हम पूरी पहले कर देते हैं। जिस चीज़ पर बच्चे हाथ रखते हैं हम लेकर देते हैं। ये चीज़ें कहने और देखने सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन ऐसे बच्चों में सब्र नहीं बल्कि नाशुक्री पैदा होती है, क्योंकि उनको चीज़ों की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा ही नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा हो तो इनको चीज़ें थोड़ा ठहर कर देना सिखाएं। अगर आपने उनको कोई गिफ्ट या कोई बड़ी चीज़ लेकर देनी है जिसकी उसने डिमांड की हो, या अगर आपने खुद भी उसे लेकर देनी है, तो कोई गोल और टारगेट दें कि पहले ये काम करोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। इस तरह करने से बच्चे को अपना काम मुकम्मल करना भी आएगा और सब्र करना भी आएगा कि ठीक है चीज़ मिलेगी मगर 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, फौरन नहीं मिलेगी। इस तरह करने से बच्चा उस टाइम ड्यूरेशन तक सब्र भी करेगा, उसे सब्र करना आएगा और इसके अलावा अपना टारगेट कंप्लीट करना या अचीव करना भी आएगा। और एक क्वेश्चन था कि बच्चों से मोबाइल की आदत कैसे छुड़वाएं। नो मैटर बच्चे की एज क्या है, आप एक स्क्रीन टाइम फिक्स करें उनका कि बेटा आपने इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक आपने स्क्रीन टाइम रखना है, मोबाइल या टीवी यूज़ करना है। घर पर ये रूल बना लें कि एक फिक्स्ड ड्यूरेशन है, इसमें आपने मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद मैं आपसे मोबाइल ले लूंगी और टीवी ऑफ कर दूंगी। अब वो टाइम 1 से 3 घंटा फिक्स कर लें, या फिर आप डिवाइड कर लें टाइम को, सुबह देख लें, दोपहर में या रात में एक टाइम देख लें। अब इस डिसाइडेड और फिक्स्ड ड्यूरेशन के अलावा अगर बच्चे आपसे मोबाइल या टीवी का कहते हैं तो आप उनसे कहें कि जो एक फिक्स टाइम था आपका, आप उतना टीवी या मोबाइल यूज़ कर चुके हो, आप अपना आज का टीवी और मोबाइल का टाइम खत्म कर चुके हो, अब आपको कल अलाउड होगा। इसके अलावा अगर छोटे बच्चे हैं और उनकी अटेंशन आपने मोबाइल से डाइवर्ट करवानी है तो उन्हें किसी गेम्स की तरफ तवज्जो दिलाएं या कोई एक्टिविटी करवाएं, लाइक पेंटिंग, कलरिंग, ड्राइंग और क्राफ्टिंग वगैरह की तरफ उनका माइंड सेट करें। इसके अलावा खुद भी बच्चों के साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, किसी गेम में उनके साथ अपना इंटरेस्ट शो करें, तो बच्चे आपके साथ भी गेम्स खेलने को बड़ा इंजॉय करेंगे और मोबाइल नहीं मांगेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के सामने आप खुद भी कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप हर वक्त मोबाइल यूज करेंगे बच्चों के सामने तो उनको भी इसकी अट्रैक्शन होगी। सिंपल फॉर्मूला इस कि जो काम आप अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं वो खुद भी करें, और जो काम आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा ना करे आपको खुद भी वो काम छोड़ने होंगे। ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो काम आपको करना या छोड़ना मुश्किल लग रहा है तो वो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फलां काम करे और फलां काम छोड़ दे। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छे लगे हों पॉइंट्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।